Dear students, today we are going to discuss photoelectric effect. Question is, what is photoelectric effect? In last class, we discussed electron emission of electron, and one method was photoelectric emission. Photoelectric emission. Here photoelectric is framed from two words, photo, whose meaning is light, and electric means electric emission. Electric means electric charge. And when electric charge flow, then we can say electric current is flowing. It means that emission of electric charge, here electrons, that is also electric charge, an electric charge. Then we used to say emission of an electron by the help of light. Emission of an electric charge means electron by the help of light is known as photoelectric emission. हमने इसको पढ़ा था. And now here our topic is photoelectric effect. वहाँ emission था, here we have effect. Again we have photoelectric. Photoelectric means photo plus electric. Photo plus electric. Photo plus electric effect. Then we used to say electric effect by the help of photo means by the help of light. इट मीन दैट कि अगर किसी मेटल सरफेस पर हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा. इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेज विल फ्लो, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्लो देन वी यूज टू से करंट इज फ्लोइंग, एंड दैट्स व्हाई वी यूज टू से कि here is electric effect. Here we are getting electric effect by the help of light. That's why this very phenomenon is known as photoelectric effect, right? And then we used to write when light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface, and this phenomenon is called photoelectric effect. Here we have a term, suitable frequency. Question is this, what is the meaning of this very suitable frequency? In last class we have discussed about it that if we have a light radiation of frequency nu, then energy associated with E equal to h nu, which is equal to hc by lambda. अगर यह एनर्जी, इट मीन दैट इफ यू आर पुटिंग अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ओवर मेटल सरफेस, इट मीन दैट यू आर पुटिंग एनर्जी दिस मच. और हमने यह पढ़ा है मेटालिक कंडक्टर के अंदर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, बट दे आर अनेबल टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस. फॉर दैट देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, विच इज नोन एज वर्क फंक्शन. It means that this very emission of electron will take place when this very energy will be more than work function. जब यह जो है वर्क फंक्शन से अधिक होगा तभी और तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो पाएगा, राइट. इट मीन दैट यह एनर्जी इससे अधिक होगा. इसका मतलब क्या हो गया, यह जो फ्रीक्वेंसी है उसका इक्विवेलेंट एनर्जी इस एनर्जी से अधिक होना चाहिए, वर्क फंक्शन से अधिक होना चाहिए. देन एंड ओनली देन देयर विल बी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई हियर वी हैव यूज्ड द टर्म सुटेबल फ्रीक्वेंसी, राइट. Regarding photoelectric effect, first observation was done by Mr. Hertz, and it is known as Hertz observations. Result of his observation is or was
The ultraviolet light falling on the metal surface causes the emission of negatively charged particles. मीन्स अगर किसी मेटालिक सरफेस पर हम लोग यूवी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का इमिशन होता है, राइट. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है. दिस वाज द फर्स्ट observation which was done by Mr. Hertz. Second one is your Halleck observation. Second observation is done by Mr. Halleck. इनका क्या है? Then before coming over his observation of Mr. Halleck, first come over his pictorial representation. See here, you have a zinc plate. It is a metallic plate, right? Which is connected to an electroscope. यह इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्टेड है. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप. देन एज आई थिंक वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप इन चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट, राइट. ये होता क्या है? देन सिंपली वी यूज टू से इन इलेक्ट्रोस्कोप इट इज योर इलेक्ट्रोस्कोप. यह होता क्या है? In this very electroscope, we have a metallic rod. We have a metallic rod in the shape of J, right? और इसके टॉप पर जो है इसका जो होता है कैप होता है which is in this very shape, right? अब इसके जो है J शेप के पास जो है एक जो है गोल्ड का स्ट्रिप जो है हम लोग ऐसे करके लटका देते हैं, राइट. नाउ हमने यह पढ़ा है कि व्हेन वी गिव चार्ज टू इट्स टॉप मेटालिक कैप देन दैट वेरी चार्ज विल कम डाउन एंड विल कम ओवर गोल्ड लीफ आल्सो. देन इट मीन दैट अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है देन इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, इट विल बी आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, सो देयर विल बी रिपल्सन और नॉट देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन गोल्ड लीफ. अगर और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देंगे तो फिर इस पर और फैलेगा और ज़्यादा चार्ज आएगा. मीन्स डाइवर्जेंस बिटवीन द लीफ ऑफ द गोल्ड विल इंक्रीज, राइट. अगर हम लोग निगेटिव चार्ज देंगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो कुछ पॉजिटिव को ख़त्म करेगा. मीन्स निगेटिव चार्ज मेरा पॉजिटिव चार्ज मेरा घट जाएगा, सो रिपल्सन विल डिक्रीज. इट मीन दैट विद इंक्रीज एंड डिक्रीज चार्ज ओवर द लीफ. ये ऐसे कह दीजिए कि जब हम लोग चार्ज को इंक्रीज कराएंगे या डिक्रीज कराएंगे तो डाइवर्जेंस कम होगा और अधिक होगा. इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा हमने चार्ज इसके प्लेट पर दिया है और कौन सा नहीं दिया है, राइट. एंड नाउ दिस वेरी टिप इज कनेक्टेड टू अ गोल्ड प्लेट, राइट. अब जो है मिस्टर जो लेनार्ड हॉलेक ने क्या किया, इसने यूवी लाइट इस गोल्ड प्लेट पर इंसिडेंट कराया, राइट. जब गोल्ड प्लेट पर इंसिडेंट कराया देन व्हाट डू वी आर ऑब्जर्विंग कि जो है कि अगर यह निगेटिवली चार्ज है, अगर पहले से गोल्ड लीफ निगेटिवली चार्ज था तो यह अनचार्ज बन गया. अनचार्ज बन गया तो जब अनचार्ज हो जाएगा देन सेपरेशन बिटवीन द लीफ विल डिक्रीज. तो कैसे अनचार्ज हुआ यह कैसे पता चला? तो इसका सेपरेशन घट गया, राइट. अब मैं इस पर इतना नहीं आ रहा हूँ, केवल इस पर मैं आ रहा हूँ कि जब उसने यूवी लाइट को जिंक प्लेट पर इंसिडेंट कराया, शुरू में अगर यह निगेटिवली चार्ज था तो ये हो गया अनचार्ज. व्हाट डज इट मीन? यह निगेटिव चार्ज इससे बाहर निकल गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया. सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या किया कि अगर यह अनचार्ज है, इफ दिस वेरी प्लेट इज अनचार्ज देन आफ्टर इमिशन आफ्टर पुटिंग यूवी लाइट इट हैज़ बिकम पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज हो गया है. व्हाट डज इट मीन? अभी यह अनचार्ज था, यूवी लाइट डालने के बाद यह पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया? तो लगता है बाहर निकल गया, राइट. थर्ड केस में अगर यह पॉजिटिवली चार्ज है, हमने यूवी लाइट इंसिडेंट कराया तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया. क्यों बढ़ गया? कहाँ गया निगेटिव चार्ज? बाहर निकल गया. इट मीन दैट इन ऑल दिस फिनोमेना he observed that emission of electrons due to incident of UV light
ओवर जिंक प्लेट हैज़ टेकन प्लेस। और इसी को इन्होंने नाम दिया कि व्हेन वी पुट लाइट ओवर द मेटेलिक प्लेट देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, मीन्स हेयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू लाइट, दैट्स वाई दिस वेरी phenomenon is known as photoelectric effect, right? तो उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन ऑफ हॉलेक वाज नंबर 1, जिंक प्लेट बिकम्स अनचार्ड इफ इनिशियली नेगेटिवली चार्ज। अगर शुरू में नेगेटिवली चार्ज है तो वो अनचार्ज हो जा रहा है। इफ पॉजिटिवली चार्ज इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली अनचार्ज। अगर अनचार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, जिससे लगता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकला है उससे। इट बिकम्स मोर पॉजिटिवली चार्ज if initially positively charged. It means that in all these three cases, he observed that emission of electron from the metal surface from the zinc plate has taken place due to incidence of UV light. तो उन्होंने कहा some negatively charged particle are emitted by the zinc plate when exposed to UV light, right? थर्ड ऑब्जर्वेशन इज ऑफ मिस्टर लेनार्ड। लेनार्ड का क्या ऑब्जर्वेशन है? देन सी हिज ऑब्जर्वेशन। अकॉर्डिंग टू लेनार्ड, पहले यह देखिए कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया। सबसे पहले उन्होंने एक बैटरी ली, इसका 2 टर्मिनल होगा पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को एक प्लेट से कनेक्ट कर दिया और निगेटिव को एक प्लेट से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को दूसरे प्लेट से कनेक्ट कर दिया। तो जब निगेटिव को एक प्लेट से कनेक्ट कर दिया, देन दिस वेरी प्लेट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज प्लेट। नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स आर आल्सो नोन एज कैथोड। इट मीन दैट दिस वेरी प्लेट हैज़ बिकम कैथोड। और यह मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, इट मीन दैट इट हैज़ बिकम एनोड, राइट? एंड आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया, यूवी लाइट को कैथोड पर इंसिडेंट कराया। क्यों कराया? बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज। जब हम लोग इस पर यूवी लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, मीन्स एनर्जी इस पर इंसिडेंट कराएंगे, देन आफ्टर गेटिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में कम आउट। और वही हुआ भी, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। इलेक्ट्रॉन बाहर आया एंड आफ्टर दैट सी हेयर इट इज योर नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इट इज योर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इट मीन दैट बिटवीन द प्लेट्स देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट? और हम लोग कहते हैं कि जो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, we used to say electrons experiences force opposite to the field, मीन्स इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या फिर नहीं तो ऐसे समझिए, जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको यह प्लेट वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा और एनोड प्लेट वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा। इट मीन दैट इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस टू दिस, from cathode to anode, and in this manner our circuit will become closed and current will flow. It means that there will be emission of electron due to incidence of UV light over cathode. Again there is electric effect by the help of light. It means that it is your photoelectric effect, right? According to Leonard, when UV light are allowed to fall on the emitter plate means which will emit negative charge means cathode of an evacuated glass tube। यह एक्सपेरिमेंट जो है एक ट्यूब में कराया गया था, including 2 electrodes cathode and anode, a current flows in the circuit. As soon as ultraviolet radiations are stopped, the current also stops. अगर यूवी लाइट का इंसिडेंस हम लोग रोकते हैं तो करंट भी फ्लो बंद हो जाता है। इट मीन दैट यूवी लाइट इंसिडेंट होते रहा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होते रहा, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहा, कलेक्टर की तरफ जो है, एनोड की तरफ जो है वो करंट मिलता रहा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन द इमिटर प्लेट ejects out some negatively charged particles from it. The emitted negatively charged particles are electrons which are known as photoelectrons। इसको हम लोग कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यह जो इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ फोटो।
and the current which we get, that is known as photoelectric current, and the phenomena is known as photoelectric effect. Then we can say कि when the frequency of incident light and one more thing, हमने वर्क फंक्शन पढ़ा है, अगर जो मेरा जो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं लाइट जो है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उसका जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगा, अगर वह एनर्जी इफ दैट विल बी लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस. इट मीन दैट देयर विल बी नो करंट. It means that energy should be more than work function. It means that frequency should be more than something fixed value, right? So we used to say when the frequency of the incident light is less than the certain minimum frequency. अगर certain minimum frequency से कम है which is also known as threshold frequency, then there will be no emission of photoelectron, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी है वह वर्क फंक्शन से कम एनर्जी है, वह एनर्जी देगा भी तो वर्क फंक्शन से कम देगा. there will be no emission of electron, right? The phenomenon of emission of electrons from the metal surface when electromagnetic radiations of sufficiently high frequency are incident on it, this very phenomenon is called photoelectric effect. And the photon generated electron, जो कि इलेक्ट्रॉन का जनरेशन फोटोन के चलते हो रहा है, they are called photoelectrons, right? Now come over experimental study of photoelectric effect by Leonard and R.A. Millikan. ये जो लेनार्ड हैं और R.A. मिलिकन हैं, इन दोनों मिलकर के भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ओवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ कम ओवर हिज एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट सी हिज एक्सपेरिमेंट, सी द फिगर. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिगर. सी हेयर वी हैव अ सेल. यहाँ पर आपका सेल है. नेगेटिव टर्मिनल इज दिस एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज दिस, right? And this very negative terminal is connected to this end of a resistive wire, and this end is connected to this end, right? As it is positive end, so we can say potential of this very end will be high, and it is negative end, so potential of this very end will be low. Means in this very region there is creation of potential डिफरेंस, राइट? अब इन्होंने क्या किया जरा देखिएगा. इट मीन दैट यहाँ पर पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पर पोटेंशियल हाई होगा. एट दिस वेरी पोजिशन पोटेंशियल विल बी हाई, एंड एट दिस वेरी पोटेंशियल विल बी लो. जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ आते जाएंगे पोटेंशियल मेरा कम होते जाएगा. एंड आफ्टर दैट सी हेयर, यहाँ से एक एंड से इन्होंने जो है बीचों बीच से जो है एक वायर लेकर के चला जो है और इस प्लेट को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से जो है एक दूसरा एंड लेकर के चला जो है यहाँ से जो है, और इसको आकर के दूसरे प्लेट से कनेक्ट कर दिया, राइट? देन इट इज श्योर दैट पोटेंशियल ऑफ दिस वेरी एंड विल बी लो एंड दिस एंड विल बी हाई. तो इस मीन्स यू कैन से it is behaving like negative end and it is behaving like positive end. It means that this very plate will become negatively charged, means cathode, and this very plate will become positively charged, means anode, right? And after that उन्होंने क्या किया, see here from this very window इन्होंने UV लाइट को इंसिडेंट कराया, UV लाइट को इस कैथोड पर इंसिडेंट कराया, राइट? वाई कैथोड, तो पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था कि एज इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, इट मीन दैट दिस वेरी कैथोड विल हैव प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हेन वी विल पुट लाइट ओवर इट, देन आफ्टर गेटिंग लाइट emission of electrons will take place, right? And second thing, it is your negatively charged, it is your positively charged. It means that in this very region there will be electric field. तो जो इलेक्ट्रॉन निकल करके आएगा वह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स अलोंग दिस डायरेक्शन दे विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड दे विल मूव. व्हेन दे विल मूव इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा, इस सर्किट में होगा. इट मीन दैट अल्टीमेटली वी विल गेट करंट or not, we will get current. It means that here we are getting current, here we are getting electric effect by the help of light, by the help of incidence of light. That's why this very phenomena is known as photoelectric effect. Right? इतना समझा आपने. अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ कि हमने यूवी लाइट को इंसिडेंट कराया, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस, और यह इलेक्ट्रॉन यह पॉजिटिव इंड की तरफ जो है ये सभी जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव इंड की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, विल बी एक्सेलरेटेड अलोंग पॉजिटिव इंड, विल बी एक्सेलरेटेड अलोंग पॉजिटिव इंड. राइट, क्लियर अप टू दिस. एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, what is the difference of potential between these 2 points, same will be difference of potential between these 2 points. अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, लेट अस सपोज इस इंड के पोटेंशियल को उन्होंने जीरो कहा, मीन्स हेयर पोटेंशियल इज जीरो, देन हेयर विल बी सम पॉजिटिव पोटेंशियल, लेट अस सपोज 2 वोल्ट. राइट, then here we have potential difference of 2 volt. So according to formula dV equal to EdR, there will be electric field, some amount of electric field, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला F इक्वल टू Q इंटू ई, और उस फोर्स के चलते यह मूव करेगा. राइट, फिर उन्होंने क्या किया कि इस इंड को थोड़ा और आगे बढ़ाया. हेयर जब थोड़ा और राइट में बढ़ाएंगे देन पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, देन emitted electron will experience more force, so acceleration will increase, a speed will increase, and when a speed will increase it means that number of electrons which will cross through any cross section will increase. It means that current will increase. It means that from here we can say with increase in पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि यहाँ जब इसको बढ़ाएंगे तो एनोड का पोटेंशियल बढ़ेगा, विद इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ एनोड वी आर गेटिंग मोर एंड मोर करंट. राइट, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया और बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल को, और राइट ले जा रहे हैं, और पोटेंशियल इस इंड का बढ़ रहा है और करंट मिल रहा है, और बढ़ाए और करंट मिल रहा है, मीन्स विद इंक्रीज इन एनोड पोटेंशियल we are getting more and more current, means current is increasing. Right, but after some time what do we observe, हम लोग कुछ समय के बाद देखते हैं कि यह जो है करंट, और हम लोग बढ़ा रहे हैं एनोड पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, बट आवर करंट इज नॉट इंक्रीजिंग. व्हाई, तो हम लोग यह कहते हैं कि शुरू में जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, राइट, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो एक्सेलरेटेड हो रहा था, जरूर है, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन जो है जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उतना सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहे थे. क्यों, क्योंकि अगला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल कर रहा होगा. बट जब हम लोग पोटेंशियल बढ़ाने लगे, फील्ड मेरा बढ़ गया, करंट तेज़ी से भागने लगा, बढ़ते चला गया. बट आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, व्हाट डू वी आर ऑब्जर्विंग कि करंट इज नॉट इंक्रीजिंग, करंट मेरा बढ़ नहीं रहा है, एज इट इज़ बना हुआ है. तो क्यों, तो उसके पीछे लॉजिक यह दिया जाता है कि उस समय में इमेजिन कीजिए कि जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सारा का सारा चलते जा रहा है, सारा का सारा चलते जा रहा है, निकला गया. इट मीन्स दैट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड, दैट इज नॉट चेंजिंग, सो करंट विल नॉट चेंज. इट मीन्स दैट आफ्टर ए सर्टेन लिमिट current is not increasing, means current has taken saturation value, and that value of current is known as saturated current. There is one more observation of Mr. Leonard and R. M. Millikan कि जैसे जैसे यूवी लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंक्रीज कराते हैं, मेरा करंट बढ़ता है.
करंट बढ़ता है मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इसका मतलब फोटोन हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं, अगर उसका नंबर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड दैट्स वाई करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग, राइट। Their observation was, or where, when monochromatic radiations of suitable frequency fall on the plate C, electrons are emitted, which are collected at the plate A. So the current is formed or current flows, which is known as or which is called photoelectric current, which flows in outer circuit. Right? Question is this: what will be effect of intensity on photoelectric current? जो हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा या मिल रहा है उस पर इंटेंसिटी का इफेक्ट, लाइट के इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा? देन हेयर इंटेंसिटी मीन्स इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ फोटोन्स, मीन्स जब मेरे फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, राइट, तो आपको एक बात याद रखिएगा, वन फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यही फाइनली रिजल्ट आना है, राइट। तो समझने में आसानी होगी, अभी से ही एक्सेप्ट कर लीजिए इस बात को। इट मीन दैट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज मीन्स व्हेन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स per second increases, then number of emitted electrons per second will also increase. So, and number of emitted electrons per second is increasing, means current is increasing, right? It means that we can say with increase in intensity of light, photoelectric current also increases, right? See here, if radiations of fixed frequency is allowed to fall on the plate C, and the accelerating potential difference between the two plates is kept fixed, मान लिया जाए केवल हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं बढ़ा रहे हैं, then the photoelectric current is found to increase linearly with the intensity of incident radiation. It means that जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं मेरा जो है करंट मेरा बढ़ता है. The photoelectric current is directly proportional to the number of photoelectrons emitted per second. It means that number of photoelectric current emitted per second, which is also current, is proportional to intensity of incident radiation. More intensity, more emitted electrons, more current. Right? Then graph between photoelectric current and intensity will be a straight line, right? With increase in intensity, current also increases. Graph will be this. Now come over कि what will be effect of potential of anode. एनोड का पोटेंशियल जब हम लोग बढ़ा रहे थे तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा था? Now see here. C, let us suppose at any time intensity is I1. क्या केवल मैं पहले इंटेंसिटी I1 पर कह रहा हूँ? आपने यह कहा था let us suppose कि आपने तो कैथोड को जो है जीरो पोटेंशियल सपोज कर लिया था, और जब एनोड का पोटेंशियल हम लोग जीरो से आगे लेकर के पॉजिटिव लेकर के चल रहे थे, देन व्हाट डू वी आर ऑब्जर्विंग कि जैसे जैसे हम लोग एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे थे अकॉर्डिंगली आवर करंट वाज इंक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, फोर्स स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, तो जो है मूवमेंट जो एसेलेरेशन प्रोड्यूस वो ज़्यादा होगा, तेज़ी से भागेगा, मीन्स पर सेकेंड द इलेक्ट्रॉन्स विच विल क्रॉस दैट विल बी मोर, सो करंट विल बी मोर. तो हम लोग लिसन, हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एनोड का पोटेंशियल दिखाया है और वर्टिकल डायरेक्शन में फोटो करंट मीन्स करंट दिखाया है. देन व्हाट डू वी आर ऑब्जर्विंग कि जैसे जैसे मेरा एनोड पोटेंशियल बढ़ रहा है करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग. देखिए जरा सा, यहाँ पर कुछ है और हमने बढ़ाया तो यहाँ पर करंट कुछ, यहाँ पर करंट कुछ और हो गया,
राइट, यहाँ पर करंट कुछ और हो गया, मीन्स इनिशियली विद इंक्रीज इन एनोड पोटेंशियल फोटो करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट increase in current stops, means now current is not increasing, means potential मेरा बढ़ रहा है, node potential is increasing but current is not increasing. what does it mean कि अब करंट जो है अपना सैचुरेशन वैल्यू ले लिया है, का वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट इंक्रीजिंग, राइट, नॉट इंक्रीजिंग. नाउ कम बैक, लेट अस सपोज वी आर डिक्रीजिंग एनोड पोटेंशियल, तो जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल घटाते जाएंगे मेरा जो है करंट मेरा घटते जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स कम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, धीरे धीरे भागेगा, पर सेकेंड कम इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, सो करंट विल बी लेस. लेट अस सपोज हमने जो है इसको एनोड के भी पोटेंशियल को जीरो पर ले आया, जब जीरो पर ले आया तब भी हम लोग करंट पा रहे हैं. क्वेश्चन इज वाई, देन आंसर विल बी कि हमने सर्टेन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन को इंसिडेंट कराया, उसका इक्विवेलेंट एनर्जी कुछ है E = h nu, right? When this very energy will be more than work function, then it is sure that emission of electron will take place. और अभी कुछ और एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास बचा हुआ है, that very energy is possessed by emitted electron in the form of kinetic energy, right? काइनेटिक एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन, अगर यह एनर्जी वर्क फंक्शन से अधिक है तो जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी वह वर्क फंक्शन से अधिक होगी. मीन्स इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा प्लेट से, इलेक्ट्रॉन प्लेट से जो निकलेगा उसके पास कुछ एनर्जी होगी, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो वह वेलोसिटी से इधर भागेगा, वह वेलोसिटी से इधर भागेगा. मानता हूँ एनोड पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही इसका पोटेंशियल है, right? It means that here we have no electric field, but these electrons have some energy, so these will move along this direction. These will move along this direction. One more thing, आप यहाँ पर ऐसे समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा यहाँ पर निकलेगा, कुछ हो सकता है इधर भागे, कुछ हो सकता है इधर भागे, कुछ सीधे भागे. तो जो इधर भागा उसका ए वाला कंपोनेंट कम होगा, जो इधर भागा उसका भी ए वाला कंपोनेंट कम होगा, जो और इधर होगा उसका कंपोनेंट अधिक होगा, और जो एकदम सीधे इस प्लेट की तरफ भागेगा उसकी वेलोसिटी सबसे अधिक होगी, मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगा, और ना. अब हमने जीरो पोटेंशियल कर दिया है तब भी मुझे करंट मिल रहा है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. एंड नाउ लेट अस सपोज वी आर डिक्रीजिंग पोटेंशियल, हम लोग पोटेंशियल को कम कर रहे हैं. वंस अगेन कम ओवर फिगर, सी दिस वेरी फिगर. लेट अस सपोज हमने जब इस एनोड के पोटेंशियल को कैथोड के पोटेंशियल पर रख दिया तब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जीरो हो गया, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स, बट ड्यू टू पोजेस्ड काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन. जो इधर भागा है उसका ये वाला कंपोनेंट कम होगा, जो इधर भागा है कंपोनेंट कम होगा, जो थोड़ा और पास में है उसका ज़्यादा होगा, एकदम जो एकदम सीधे है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगी, राइट. नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि अब हम लोग इसके एनोड के पोटेंशियल को हम लोग निगेटिव पर ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जब यहाँ पर इसको टच करा देंगे एनोड के इंड को तो एनोड का पोटेंशियल कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू कैथोड. तो जो यह पॉजिटिव के रूप में बिहेव कर रहा था, नाउ इट विल बिहेव एज निगेटिव चार्ज, और यह मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल वाला बन जाएगा, या निगेटिव पोटेंशियल वाला बन जाएगा. हमने यूवी लाइट इंसिडेंट कराया, हमने यूवी लाइट इंसिडेंट कराया, ये बन जाएगा निगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, राइट, क्योंकि यहाँ आ गया है. अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे काइनेटिक एनर्जी लेकर के, दे विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, बट व्हाट विल बी फंक्शन ऑफ दिस वेरी एनोड, नाउ दे विल रिपेल. अभी तक तो अट्रैक्ट कर रहा था ना, बट नाउ दिस वेरी एनोड विल रिपेल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो क्या होगा, जिस इलेक्ट्रॉन का इधर वेलोसिटी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, वह
पहले रुकेगा, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वह इस रिपल्सन को भी अपोज करते हुए आगे बढ़ेगा और नॉट बढ़ेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल रीच हेयर दैट विल डिक्रीज, मीन्स करंट विल डिक्रीज। इसका पोटेंशियल और निगेटिव कर दीजिए, और निगेटिव कर देंगे देन रिपल्सन फोर्स विल अगेन मोर इंक्रीज, ज़्यादा इंक्रीज होएगा तो अब और कम इलेक्ट्रॉन जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, राइट। हम लोग इतना तक पोटेंशियल ले आए, इतना तक पोटेंशियल ले आए कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है अगर वह भी जो है वहाँ नहीं पहुँच पाता है, इट मीन दैट देयर विल बी कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ फोटो करंट, देयर विल बी कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ फोटो करंट, राइट। इट मीन दैट नाउ दिस वेरी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, now this very applied potential difference is able to stop current completely, right. That's why this very potential difference, or you can say this very anode potential is known as a stopping potential, right. यह पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने यह पढ़ा है कि अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो तो इलेक्ट्रॉन ईवी लाइट पोजेस करेगा, अगर जो है एक्सीलरेट हो रहा है तो ईवी एनर्जी गेन करेगा, और अगर जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ईवी के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा, और नॉट। इट मीन दैट अगर यह जो है लेट अस सपोज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0, जिसने करंट को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया है, इट मीन दैट कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ तक पहुँचने के लिए EV0 एनर्जी होनी चाहिए। इट मीन दैट जो इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी था दैट वाज लेस देन जो EK था, दैट वाज लेस देन EV0, मिनिमम कम से कम EV0 के बराबर है। EV0 से थोड़ा सा कम रहेगा तो नहीं पहुँचेगा, राइट। मीन्स आप EV0 से थोड़ा सा भी कम रहेगा, मीन्स EV0 के बराबर रहेगा तो नहीं पहुँचेगा, वी कैन से और नॉट। इतना कम कह सकते हैं। इट मीन दैट दिस वेरी पोटेंशियल इज एबल टू stop photocurrent completely, right. Now come over theory. It mean that when we will see here, यहाँ पर तो जीरो पोटेंशियल एनोड, हम लोग कैथोड के पोटेंशियल को जीरो लिया था, एनोड के घटाते घटाते जीरो ले आए, फिर भी कुछ ना कुछ करंट मिलता है। अब एनोड के पोटेंशियल को निगेटिव करने लग गए तो करंट घट रहा है। जिसके पास अधिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अधिक है, वेलोसिटी अधिक है, वो पहुँच रहा है, जिसके पास कम था वो पहुँच नहीं पाया, और कम की और कम हुआ, और कम की और कम हुआ। एट ए पर्टिकुलर वैल्यू करंट कंप्लीटली स्टॉप्स। It mean that at this very potential there is complete stopping of current. That's why this very current is known as this very potential is known as a stopping potential, right. Come over another figure, this intensity I2. Let us suppose intensity is more, means number of photons which are increasing, which we are putting over the cathode is more, then no doubt emitted electrons will be also more, so current will be also more. Let us suppose जो पहले वाले फिगर में जब इंटेंसिटी I1 था वह करंट इतना था, उस समय ड्यू टू इंक्रीज इन इंटेंसिटी इसका I2 वाले का करंट इतना है, और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा है, फिर यह सेचुरेशन को पा लिया, घटा रहे हैं घट रहा है, घटा रहे हैं एनोड पोटेंशियल घटा रहे हैं, घट रहा है, राइट। Again at a particular potential, complete elimination of current takes place. तो क्वेश्चन इज दिस कि क्या इंटेंसिटी I2 पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा? देन आंसर विल बी यस। हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, इंटेंसिटी को चेंज किया है, एंड वन फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, राइट। इट मीन दैट हर एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करेगा, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी सेम, चाहे इंटेंसिटी मेरा कुछ भी हो जाए,
so stopping potential for same frequency will be same, right? तो कोई भी इंटेंसिटी ले लीजिए, अगर ये फ्रीक्वेंसी इज सेम देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम. Now see here, we used to say photoelectric current increases with the increase in accelerating potential till a stage is reached when the photoelectric current becomes maximum. जब फोटोइलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो जाता है उसके बाद चाहे आप पोटेंशियल जितना बढ़ाते रहिए एनोड का, देयर विल बी नो इंक्रीज इन करंट, राइट? देयर विल बी नो इंक्रीज इन करंट. And photoelectric current does not increase further with the increase in accelerating potential. चाहे आप उसके बाद आप accelerating potential जितना बढ़ाते रहिए, there will be no increase in current. This maximum value of photoelectric current is called saturation current. Is called saturation current, right? The value of the retarding potential at which the photoelectric current becomes zero is called cutoff voltage or cutoff potential or stopping potential. For a given frequency means एक particular frequency के लिए stopping potential और cutoff potential will be same. At the stopping potential, when no photoelectrons are emitted, the work done by the stopping potential on the fastest electron must be equal to the kinetic energy. Must be equal to kinetic energy. So we used to write maximum kinetic energy possessed by the emitted electron will be equal to half m v max square, which will be equal to E into V0, right? The value of saturation current increases in proportion to the intensity of incident radiation. लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो saturation current मेरा बढ़ेगा, while the stopping potential remains same, right? For a given frequency of incident radiation, a stopping potential is independent of intensity. इंटेंसिटी का जो है stopping potential पर कोई असर नहीं होगा. किसका असर होगा stopping potential पर? फ्रीक्वेंसी का. Now come over effect of frequency of incident radiation on stopping potential. अभी आपने कहा फ्रीक्वेंसी का stopping potential पर असर होगा. क्या असर होगा? Then simply we can say कि when frequency will increase, then energy associated with the photon will increase, and as work metal is same, so work function will be same. So maximum kinetic energy will increase, and when maximum kinetic energy will increase, then EV0 will increase. E is constant, so V0 will increase. Value of stopping potential increases with the increase of incident radiation. Greater the frequency of incident radiation, greater the maximum kinetic energy of the photoelectrons, and hence greater is the retarding potential required to stop such electrons completely. Right? See this very figure. Let us suppose, in this very case, let us suppose intensity is same, means number of photons which we are putting over the surface is same. The number of photons same है. It means that one photon is responsible for ejection of one electron, so number of ejected electrons will be same, right? And now with increase in anode potential बढ़ाएंगे. टेक फिगर नंबर 1, केवल फ्रीक्वेंसी नंबर 1 जो पहला फिगर देख रहे हैं, ये वाला जो है पहला ग्राफ है, उसको देखिए. तो इसका ग्राफ क्या होगा? देन ग्राफ विल बी लाइक दिस. इसका जो ग्राफ होगा जैसे बनता था वैसे बनेगा, राइट? अब जरा सा आप यह ले लीजिए कि हमने जो है इंटेंसिटी मेरा वही है, लेकिन हमने क्या फ्रीक्वेंसी बदल दिया. जब फ्रीक्वेंसी बदल दिया,
राइट। तो जो सेचुरेशन आता था, सेचुरेशन करंट आता था, हम लोग कहते थे विद इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस करंट इंक्रीजेज, नो डाउट इट विल इंक्रीज, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम एज इंटेंसिटी इज सेम, मेरा इंटेंसिटी सेम है तो सेचुरेशन करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो जब इंटेंसिटी मेरा सेम है, राइट, और सेचुरेशन के समय जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं सारे के सारे पहुंचते जाते हैं, इट मीन दैट एज इंटेंसिटी इज सेम सो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम, और सारे के सारे कैथोड एनोड के पास पहुंचते जाएंगे, सो देयर विल बी नो इंक्रीज इन करंट, सो सैचुरेशन करंट विल बी सेम। बट व्हेन यू विल डिक्रीज एनोड पोटेंशियल, जैसे जैसे घटाते जाएंगे तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, वर्क फंक्शन में सेम एनर्जी लगेगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, देन ई वी ज़ीरो ज़्यादा होगा, मीन्स वी जीरो ज़्यादा होगा, मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इट मीन दैट विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन। Now come over variation of stopping potential with frequency of incident radiation। यह जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। तो अभी आपने कहा कि अगर हमने न्यू फ्रीक्वेंसी का जो है इंसिडेंट कराया है तो इसका जो एनर्जी होगा दैट विल बी करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी होगा, दैट विल बी इक्वल टू ई इक्वल टू एच न्यू, राइट। अब इसमें से कुछ एनर्जी जो है, इसमें से कुछ एनर्जी जो है ई डैश चला जाएगा वर्क फंक्शन में और बाकी जो बचेगा वह जाएगा ई के में, राइट, जाएगा ई के में। इट मीन दैट अगर यह फ्रीक्वेंसी इसका न्यू था तो इसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी एच न्यू होगा, राइट। और वर्क फंक्शन के बराबर जो एनर्जी है, अगर केवल एक हमने ऐसा फोटोन इंसिडेंट कराया जिसका की फ्रीक्वेंसी जो है केवल इलेक्ट्रॉन, जिसका जो एनर्जी जो है वर्क फंक्शन के बराबर है, तो और उसका फ्रीक्वेंसी अगर न्यू डैश लें देन वी कैन राइट ई डैश विल बी इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस ई के, और नॉट, एंड ई के विल बी इक्वल टू, ई के विल बी इक्वल टू व्हाट, ई के विल बी इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो, सो वी कैन राइट एच न्यू इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस ई वी ज़ीरो, right, then nu will be equal to nu zero plus E by H into V zero. It means that nu equal to E by H V zero plus nu zero. Nu is threshold frequency which is constant, nu is frequency incident, and E is constant, H is constant, your stopping potential V0. Compare this very equation with Y equal to mx plus c. It means that no doubt graph between frequency of incident radiation and stopping potential will be a straight line whose work function, whose slope will be equal to E by H which is a constant। इसका मतलब क्या होगा, जब हम लोग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराएंगे देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज, राइट। इट मीन दैट बट स्लोप ऑफ ऑल विल बी सेम। सी दिस वेरी ग्राफ, वी हैव टू मेटल्स ए एंड बी। हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाया है और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाया है, राइट। हर एक मेटल का जो है इंसिडेंट, हर एक मेटल का जो है क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगा मीन्स यू कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल का करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी डिफरेंट, राइट, that will be different, but graph will be a straight line, graph between slope and frequency will be a straight line and slope of both will be same, right, slope of both will be same। it means that
हमने यह कहा था कि जब हमारा फ्रीक्वेंसी अधिक होगा तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी अधिक होगा, वर्क फंक्शन के बराबर कुछ एनर्जी जाएगा और बाकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV0 मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल में होगा। मीन्स विद इंक्रीज इन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज। टेक एग्जाम्पल ऑफ मेटल B, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा रहे हैं, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो इंक्रीजिंग। हम लोग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी घटाते 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 चले गए तो जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी घटते चला गया। जब हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर आ गए तो केवल उतना ही एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या कह दिए नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, या कि केवल निकला है उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इट मीन दैट it is not possessing kinetic energy, so no stopping potential is required, so stopping potential will be 0, right? For second graph स्लोप तो दोनों का सेम होगा, h बाय क्या आया था, h बाय स्लोप विल बी सेम फॉर बोथ एंड इट विल बी इक्वल टू क्या निकाला था हमने, E इक्वल टू मीन्स h न्यू इक्वल टू h न्यू 0 प्लस EV0, देन न्यू इक्वल टू न्यू 0 प्लस E बाय h न्यू V0, राइट। इट मीन दैट यह स्लोप का जो पार्ट ले रहा है दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट। दोनों का स्लोप कांस्टेंट होगा, इट मीन दैट यू कैन से लाइन विल बी स्ट्रेट। लेकिन इसका जो है मेटल ए का जो है वर्क फंक्शन अलग है, मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट, राइट। वी कैन से द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज। देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0. The minimum value of the frequency of incident radiation below which the photoelectric emission stops altogether is called threshold frequency. वह फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन का हुआ तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। For the two different metals A and B, graphs are parallel straight lines. They have same slope, but the threshold frequencies are or will be different for the two metals. Now come over some two important facts. Number one is the maximum kinetic energy of the photoelectron increases linearly with the frequency of the incident radiation, but is independent of its इंटेंसिटी। जो EK होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ बढ़ेगा, लेकिन वह EK जो होगा दैट विल नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इफ इट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल howsoever large is the intensity of incident radiation। मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा तो चाहे इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दे, कितना भी फोटोन्स पर सेकेंड इंसिडेंट करा लें, देयर विल बी नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ओके माय डियर।